Welcome to We Learn Networks. This is session number 14 of Subject Management of Machines and Materials, and today we will cover the chapter Value Engineering. The topic that we will cover in these sessions are basic concepts in value engineering, historical perspectives, functions and value engineering job plan, fast diagrams and value engineering tool, some case studies in value engineering, behavioral and organizational aspects of value engineering, benefits of value engineering and concluding remarks. The first topic of our session is basic concepts in value engineering. Value engineering and value analysis is an important and powerful approach for improvement in the performance of the products, systems or procedures and reduction in cost without jeopardizing their function. जो हमारी वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल अप्रोच होता है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके किसी प्रोडक्ट या सिस्टम के लिए, ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए विदाउट जियोपार्डाइजिंग, मीन्स जितने भी हमारे फंक्शंस जो चल रहे हैं किसी भी एक वैल्यू के लिए उन्हें डिस्टर्ब किए बिना. द टर्म VE and VA are used almost interchangeably. Other terms used to convey the same concepts are value assurance and value management. ये जो हमारे concepts हैं VE और VA, interchangeably हम इन terms को use करते हैं value engineering और value analysis को, और बहुत सारी जो terms है जो हम value engineering के लिए use करते हैं वो होती हैं value assurance and value management. L.D. Miles defined value analysis in his book Techniques of Value Analysis and Engineering in 1961 as an organized creative approach which has for its purpose the efficient identification of unnecessary cost, that is cost which provides neither quality nor use nor life nor appearance nor customer features. जो L.D. माइल्स था उसने वैल्यू एनालिसिस के लिए एक डेफिनेशन दी थी अपनी बुक में जिसका नाम था टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग, जो पब्लिश हुई थी 1961 में. उनके अकॉर्डिंग, L.D. माइल्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी वैल्यू एनालिसिस की वो थी कि हम ये जो हमारी वैल्यू एनालिसिस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटिव अप्रोच है जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को, अपनी वैल्यूज को अननेसेसरी कॉस्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि एफिशिएंट यूज हम किसी पर्पस के लिए डिफाइन कर सके. और ये जो कॉस्ट थी वो हमारे को ना तो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी, ना ही किसी यूज की थी, ना ही किसी लाइफ को दे रही थी, उसकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है उसे भी इंक्रीज नहीं कर रही थी, अपीयरेंस में भी नहीं लग रही थी वो कॉस्ट, और ना ही कस्टमर्स को कोई फीचर प्रोवाइड कर रही थी. रीजंस फॉर पुअर वैल्यू, किसी भी एक प्रोडक्ट की पुअर वैल्यू होने के रीजन जो होते हैं वो ये होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस behind poor value in products, systems and procedures that we came across is the lack of organized effort in devising such systems. जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है पुअर वैल्यूज के लिए किसी प्रोडक्ट, सिस्टम या प्रोसीजर के लिए वो ये होता है कि वहां पे लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है किसी सिस्टम के लिए, मीन्स उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता इन सिस्टम्स को. Value engineering should not be treated as a mere cost reduction technique or cheaping of the product. It is more comprehensive and the improvement in value is attained without any sacrifice in quality, reliability, maintainability, availability, aesthetics, etc. ये जो हमारी वैल्यू इंजीनियरिंग होती है इन्हें हमें सिर्फ मेरे एक कॉस्ट कंडीशन के लिए ट्रीट नहीं करना चाहिए. ये वो टेक्निक होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक होती है जहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू को ही नहीं इम्प्रूव करते, वैल्यू के साथ साथ हम ये भी देखते कि हमारी जो क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम सेक्रीफाइस ना करें. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वैल्यू इंजीनियरिंग हैड its origin at the General Electrical Company
As a result of World War II, many materials were in short supply and LD Miles was associated with a committee to identify substitute materials without sacrificing quality and performance. He organized a formal methodology in which a team of people examined the function of product manufactured by GEC. जो वैल्यू इंजीनियरिंग होती है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी में हुआ है, जिसका रिजल्ट जो था ये जो जीईसी बनी थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट से बनी थी और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स थे जहाँ पे उनकी शॉर्ट सप्लाई होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो एलडी माइल्स थे वो एक कमेटी से एसोसिएटेड थे जो आइडेंटिफाई करें सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स को ताकि क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई सेक्रीफाइस ना आ सके किसी प्रोडक्ट के लिए। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी बनाई जहां पे उन्होंने टीम ऑफ पीपल को एग्जामिन किया किसी प्रोडक्ट के फंक्शंस के लिए ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके उस प्रोडक्ट को जीईसी के लिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट अ फॉर्मल वीई प्रोग्राम वाज नेवी ब्यूरो ऑफ शिप्स इन 1954. In 1959, Society of American Value Engineers (SAVE) was set up to propagate the philosophy of value engineering. जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फॉर्मल वीई प्रोग्राम को इनिशिएट किया था वो थी नेवी ब्यूरो शिप्स जो कि बनी थी 1954 में। 1959 में सेव जो कि होती है सोसाइटी ऑफ अमेरिकन वैल्यू इंजीनियरिंग, उन्होंने एक फिलॉसफी प्रोपोगेट करना स्टार्ट करी वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए। मैनी कंपनीज इन यूएसए, यूके, जापान एसेट्रा subsequently set up formal VE programs. The Department of Defense in US encouraged application of VE in defense projects. ये जो बहुत सारी कंपनीज होती है, मैनी कंपनीज लाइक यूएस में जो कंपनीज है, यूके में जो कंपनीज है, जापान में जो कंपनीज है, वो फॉर्मल वीई प्रोग्राम्स को सेटअप करती है और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस की वो इन प्रोजेक्ट्स को एनकरेज करती है जो वीई की एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं। अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ वीई वीएआर रिपोर्टेड। फंक्शंस एंड वैल्यूज, टाइप ऑफ वैल्यूज। द टर्म वैल्यू इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज and is frequently confused with the monetary price or cost of item. ये जो वैल्यू होती है हम इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए या फिर बहुत तरीकों से यूज़ करते हैं और हम फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू का मतलब सिर्फ मॉनेटरी प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ आइटम नहीं होती। The term value can be divided into following types. हम वैल्यू की टर्म को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं लाइक यूज वैल्यूज, द प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज विच अकम्प्लिश अ यूजफुल पर्पस और सर्विस। ये वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे हम अपनी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज को यूजफुल तरीके से यूज करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं। एस्टीम वैल्यू, द प्रॉपर्टीज, फीचर्स और अट्रैक्टिवनेस विच कॉजेज अस टू वांट और ओन इट। मीन्स कि वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या फीचर्स या अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कि हम चाहें कि वो हमारे पास में हो। कॉस्ट वैल्यू, द सम ऑफ लेबर, मटेरियल एंड वेरियस अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसेस। जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो ये होती है कि कितना सम ऑफ लेबर लगाए, लेबर के चार्जेस, मटेरियल चार्जेस और अदर सर्विस चार्जेस जो होते हैं हमारी कॉस्ट वैल्यू में आते हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगी गई है। एक्सचेंज वैल्यू, द प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज विच enables अस टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स वी वांट। जो एक्सचेंज वैल्यू होती है ये वो प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज होती है जो हमें अनेबल करते हैं कि हम किसी चीज को किसी चीज से एक्सचेंज कर सकें। टाइप ऑफ फंक्शंस, the term function is used to mean the purpose or use of a product. प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है या हम उसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ये टर्म हमारी फंक्शन बताती है। फंक्शन टर्म ये बताती है कि वो प्रोडक्ट किस लिए बना है या उसका पर्पस क्या है। फंक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज
बेसिक फंक्शन मीन्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि मीन्स जो प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है उसका प्राइमरी पर्पस या फंक्शन क्या है। और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं द अदर पर्पस इज नॉट डायरेक्टली अकम्प्लिशिंग द प्राइमरी पर्पस बट सपोर्टिंग इट और रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजाइन अप्रोच। मीन सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते और ये एक पर्टिकुलर या फिर रिजल्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक डिजाइन अप्रोच को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर वैल्यू एरियाज। In simple terms, a soundly conducted value analysis program should essentially provide answer to the following questions. What is an item? What does it do? How much does it cost? Can anything else do the same thing? How much does the cost? ये जो हमारे पुअर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी जो वैल्यूज हैं, हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हम उन्हें सिंपल टर्म्स में साउंडली कंडक्ट वैल्यू एनालिसिस प्रोग्राम का नाम दे सके। और वो जो क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं पुअर एनालिसिस वैल्यू के लिए वो होते हैं कि ये क्या आइटम है, व्हाट इज द आइटम इज। नेक्स्ट इज कि व्हाट डज इट डू, ये जो प्रोडक्ट या आइटम है वो करता क्या है, और ये जो प्रोडक्ट है वो कितने कॉस्ट का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। कैन एनीथिंग एल्स डू द सेम थिंग, क्या कोई और चीज भी, कोई और सस्ती चीज भी यही काम कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान। वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्रोसेस। As mentioned earlier, the major advantage of the approach is that it is systematic and organized approach that examines all aspects of problem employing a questioning attitude. Thus, a formal approach has to be adopted to go through the VE program. This formal procedure models of VE process is called VE job plan. जो वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, जैसे पहले बताया, जो एग्जामिन करती है प्रॉब्लम के होने के हर एस्पेक्ट्स को और उसके लिए क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखती है। ये जो फॉर्मल अप्रोच होती है हमने इसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि हम वीई प्रोग्राम के साथ अच्छे से गो थ्रू हो सकते हैं, और ये जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है ये मॉडल करता है वीई प्रोसेस को, जिसे हम वीई जॉब प्लान कहते हैं। General phase. Throughout the application of entire job plan, the technique of this phase must be diligently applied to create the right environment for value engineering job plan to be effective. जब हम इस फेज में होते हैं तो जो एंटायर हमारा जॉब प्लान टेक्निक होती है उसे हम अच्छे से एक एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारी वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान है वो इफेक्टिव हो सके। There are 5 techniques associated with general phase. 5 टेक्निक एसोसिएटेड होती है जनरल फेज से, वो होती है यूज गुड ह्यूमन रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस हमें बना के रखने चाहिए। इंस्पायर टीम वर्क, वर्क ऑन स्पेसिफिक्स, मीन्स कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे हमें वर्क करना चाहिए। ओवरकम रोड ब्लॉक्स को हमें ओवरकम करना चाहिए। अप्लाई गुड बिजनेस जजमेंट, अच्छी बिजनेस जजमेंट को भी अप्लाई करना चाहिए। इंफॉर्मेशन फेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग स्टडीड एंड टू ऑब्टेन ऑल एसेंशियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट एज ऑल्सो टू एस्टिमेट द पोटेंशियल वैल्यू इम्प्रूवमेंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है इस फेज का, ये वो फेज होता है जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को अच्छे से गेन कर सके, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से गेन कर सके और जितने भी एसेंशियल फैक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको भी ऑब्टेन कर सकें। दिस फेज कंप्राइज ऑफ 3 टेक्निक्स। फर्स्ट इज सिक्योर फैक्ट्स, सेकंड इज डिटरमाइंड कॉस्ट एंड थर्ड इज फिक्स्ड कॉस्ट ऑन स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। फंक्शन phase. The objective of this phase are to define functions that a product actually performs and
is required to perform as well as to relate these functions to the cost and worth of providing them. ये जो इन फंक्शन फेज होता है ये बताता है, ये डिफाइन करता है कि फंक्शन या फिर हमारे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसे ये भी बताना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. द टू टेक्निक इन दिस फेज आर, फर्स्ट इज हमें एक फंक्शन डिफाइन करना चाहिए और दूसरा इवेल्युएट करना चाहिए फंक्शन रिलेशनशिप को. नेक्स्ट इज क्रिएशन फेज. The objective of this phase is to create ideas for value alternatives to accomplish the function defined in the previous phase. जो ऑब्जेक्टिव होता है इस फेज का वो ये होता है कि हम कुछ आइडियाज को क्रिएट करें वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू अल्टरनेटिव के लिए, ताकि जो हमारे फंक्शन जो हमने प्रीवियसली डिफाइन करे थे उनको हम अकम्प्लिश कर सकें. टू पावरफुल टेक्निक टू प्रमोट क्रिएटिविटी आर एस्टेब्लिश पॉजिटिव थिंकिंग and develop creative ideas. Next is evolution phase. The objective of this phase is to select for further analysis the most promising of the ideas generated during the creative phase and to subject the ideas to a preliminary screening to identify those which satisfy the following criteria. जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी फेज का वो ये इस फेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम फर्दर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं. फर्दर एनालिसिस जो हमने जनरेट करी है उनको स्टार्ट करते हैं और जितने भी हमारे आइडियाज जो हमारे क्रिएशन फेज में जनरेट हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. और जब हम इन आइडियाज को सब्जेक्ट कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड में तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक विल इट वर्क, क्या जो हमने स्ट्रेटेजी या फेज बनाए हैं क्रिएटिव फेज में वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे. इज इट लेस कॉस्टली देन द प्रेजेंट डिजाइन, क्या वो लेस कॉस्टली होगा हमारे प्रेजेंट डिजाइन से, और इट इज फीजिएबल टू इम्प्लीमेंट, क्या ये फीजिएबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मीन्स क्या ये अच्छा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए. The four techniques associated with this phase is refine and combine ideas, establish cost on all ideas, develop function alternatives, evaluate by comparison. Next is investigation phase. The three techniques of this phase further refine the selected ideas into workable and acceptable solutions, providing lower cost methods for performing the desired फंक्शन. हम इस फेज में तीन टेक्निक यूज करते हैं ताकि हम फर्दर अपने प्रोडक्ट की आइडियाज को रिफाइन कर सकें और उन्हें वर्केबल या एक्सेप्टेबल बना सकें. जो तीन टेक्निक हम इस फेज में यूज करते हैं वो है यूज कंपनी एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, कि हम कंपनी और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को यूज करें. कंसल्ट वेंडर्स एंड स्पेशलिस्ट, हमें वेंडर्स और स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए. और थर्ड है यूज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, हमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को यूज करना चाहिए. रिकमेंडेशन फेज. दिस इज द फाइनल फेज ऑफ जॉब प्लान इन विच द फाइनली सेलेक्टेड वैल्यू अल्टरनेटिव्स इज रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये जो हमारे रिकमेंडेशन फेज होता है ये फाइनल फेज होता है जहाँ पे हम किसी भी जॉब प्लान को फाइनली सेलेक्ट करते हैं और जो वैल्यू अल्टरनेटिव्स होते हैं उसके रिगार्डिंग उनको हम एक्सेप्टेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंड करते हैं. टू टेक्निक्स एसोसिएटेड विद दिस फेज आर, फर्स्ट इज प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सेकेंड वन इज मोटिवेट पॉजिटिव एक्शन. Fast diagrams as value engineering tool. Basic methodology of fast diagrams. Fast means functional analysis system techniques. It was developed in 1965 by Charles W. By the way, it visually represents the relations of functions performed by a product, service or system and identifies where the functions have the greatest impact on cost. ये जो हमारी
फास्ट डायग्राम्स होते हैं ये विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे फंक्शंस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है या फिर प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम्स हमारे साथ में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो हमारा फास्ट डायग्राम है ये एनालिसिस करता है कि कौन कौन से फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे कॉस्ट पे। Some case studies in value engineering. Value engineering has been very extensively applied in product design, systems and procedures, and a very large number of case generalities of value engineering. जो value engineering है ये बहुत ही extensive procedure या फिर product design होते हैं जिसको हम apply करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम करते हैं और प्रोसीजर करते हैं ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ केस स्टडीज हैं उनको हम रिपोर्ट कर सके बुक में। सम वेरी सिंपल केस इलस्ट्रेशंस आर अ प्रॉब्लम, मेक डिजाइन चेंजेस टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन अ लार्ज गैरेज फॉर अ ट्रकिंग फर्म। जो प्रॉब्लम है हमारी एक फर्स्ट सिनेरियो हमने दिया है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें डिज़ाइन में चेंज करना है, किसी फर्म के डिज़ाइन में चेंज करना है ताकि जो कंस्ट्रक्टर कॉस्ट है ना वो तो मिनिमाइज होता है या फिर जो हमारा लार्ज गैरेज है वो ट्रक्स को यूज़ करना चालू करे। फंक्शन प्रोटेक्ट ट्रक्स, जो हमारा फंक्शन है वो है कि हम ट्रक्स को कैसे बचाएं लॉस्ट होने से। General explanation and solution for the above problem is that company management had drawn plans to construct a large garage complex for its fleet of trucks. The value engineering analysis pointed out that trucks were on road on an average of 20 out of 24 hours. What was really needed was a large parking area एंड अ स्मॉल मेंटेनेंस बिल्डिंग। जो हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग या फिर हमारा एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें वैल्यू एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए कि मीन्स जो हमारा ट्रक है वो 20 आवर्स वर्क कर रहा है आउट ऑफ 24 आवर्स और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके लिए लार्ज पार्किंग एरिया की रिक्वायरमेंट रखें ताकि जो मेंटेनेंस है स्मॉल मेंटेनेंस बिल्डिंग में वो हो सके। बिहेवियरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। बेसिक फाउंडेशन ऑफ वीई इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल इन टीम्स। जो हमारी टीम्स होती हैं वो एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारी वीई की फाउंडेशन के लिए। अगर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो कॉस्ट रिडक्शन मेजर कंसेप्ट हो जाता है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन को हार्नेस कर सकें। सम प्रॉब्लम्स एंड रोड ब्लॉक्स दैट आर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन वीई प्रोसेस आर, कुछ जो रोड ब्लॉक्स होते हैं वो एनकाउंटर करते हैं हम वीई प्रोसेसेस में, वो होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड in VE usually have other jobs and are already busy। ये जो हमारी VE में इंडिविजुअल्स होते हैं इनके पास में भी अपने बहुत सारे काम होते हैं पर you have to spend some time with them। Individual process involved in VE usually have other jobs and are already busy। Teams may be inherently conservative, non-coherent and may avoid decisions and waste time। And last one is individual members of team may have vested interest in resisting changes। Some important factors for value engineering are: first one is organizing for VE and second one is decision making। Benefits of value engineering and concluding ranks: enables people to pinpoint areas that need attention and improvement। हमें उन चीज़ों को पिन पॉइंट कर देना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा अटेंशन की और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
provides a method for generating ideas and alternatives for possible solution to a problem. जो ये प्रोवाइड करता है या फिर मैसेज मेथड प्रोवाइड करता है ताकि कुछ आइडियाज़ को हम जनरेट कर सके, उनके लिए अल्टरनेटिव्स को ढूंढ सके और उन अल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन है किसी प्रोग्राम के लिए, उन्हें भी हम सर्च कर सकें. Provides a mean of evaluating alternatives including intangible factors. Provides a vehicle for dialogue. Documents in the library या फिर research area. Materially improves the value of goods and services. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is, what is the value engineering job plan? And second one is, describe fast diagram as value engineering tool. Thank you and have a nice day.